Hello dear students of 4th grade. Today I will discuss with you the 4th chapter of SST, that is being responsible. Before we start the lesson, kindly go through the pages of your textbook which is on the screen. In this topic we will basically study about SWICS, being responsible, elections. So let's start the chapter. We live with our parents and relatives in the comfort of our homes. However, there are other people who live around us. People who live close by are called our neighbors. We interact with our neighbors, our schoolmates, teachers, friends, relatives and other people. Together we are members of same society and country. In this paragraph, they say कि जो हम सब हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो होते हैं हमारे, उनके साथ घरों में रहते हैं, कंफर्ट जोन में, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. इसके बाद जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. और हम अपनी लाइफ में, रेगुलर डेली लाइफ में हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बातें करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं उनसे. हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे स्कूल मेट्स हैं, टीचर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और बहुत सारे और लोग हैं. और हम सब मिलके क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं और कंट्री बनाते हैं. देन फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज SWICS. वी लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वेज. Citizens of a country work together to ensure smooth functioning of the nation. So we all are live in a different societies and different ways, but we live together and very helpful for each other. Citizens of a country work together. All the people work together to ensure the functioning of the nation are going very smoothly. In India, the citizens elect people who form the government, and the government works for the welfare of people and helps in running the country efficiently. तो हम जो इंडियन के सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, खुद चूज करते हैं बाय वोटिंग सिस्टम. एंड देन द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. और जो वो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करती है, लोगों की हेल्प करती है. The Constitution of India gives certain rights to the people of India and expects them to perform certain duties towards the country. It also tells the governments the rules to be followed while governing. तो जो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें बहुत सारे राइट्स देता है कि हम अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करें जो हमारे देश के लिए हैं. और जो ये हमें ये भी बताता है, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स बनाती है, जो गवर्नमेंट्स मेक अ मैनी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री, देन वी शुड फॉलो देम while governing. The study of interactions between citizens, their rights and duties, and the formation and the functioning of the government is called SWICS. तो SWICS को उन्होंने डिफाइन किया है कि जो इंटरेक्शंस की स्टडी की जाती है, जो सिटीजन्स के बीच में होती है, उनके राइट्स और ड्यूटीज को लेकर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? SWICS बोलते हैं. Here we study about the role and function of the government, the problems in the country and how the citizens can help in solving those problems. So in this topic we also study about the roles and functions of the government के गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं, कंट्री के लिए क्या काम करती है गवर्नमेंट, और कैसे जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो सिटीजन्स को फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट वन इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल. एज स्टडीड अर्ली, जो हमने पहले पढ़ा है, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एंजॉय सर्टेन राइट्स बट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सम ड्यूटीज ऑल्सो. सो दे बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री वी हैव मैनी ड्यूटीज टू परफॉर्म about our country. These duties are towards both the people and public property. There are two types of property. One is people property, we can say also private property, and the second one is public property. We also need to care for the things around us. This is called being civic minded.
सो हमें इन जो आसपास हमारी चीजें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? सिविक माइंडेड, बीइंग अ गुड नेबर। As members of a society, we should know our neighbors and other peoples with whom we interact. We should be caring and helpful towards them. We should also be kind and compassionate. कि सोसाइटी के मेंबर होने के नाते ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हम अपने नेबर्स का ध्यान रखें जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, और जो भी कभी उनको किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम उनकी हेल्प करें और अपना जो नेचर है वो काइंड रखें, दयालु बन के रहें। वी शुड बी गुड टू अवर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा बन के रहना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू देम एंड ऑफर हेल्प व्हेन दे नीड इट, जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एज गुड नेबर्स वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट वुड अपसेट और कॉज हार्म टू अदर पीपल, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो हार्म हो, अपसेट हों। इट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी टू थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ एवरीवन अराउंड अस, तो ये भी हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम ये सोचें कि हम एक अच्छे इंसान बने सभी के लिए जो हमारे आसपास रहते हैं। नेक्स्ट वन इज बीइंग अ गुड सिटीजन। द थिंग्स एट होम लाइक बुक्स, क्लोथ्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा बिलोंग टू यू एंड योर फैमिली, दे आर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमसे बिलोंग करती है, जैसे हमारी बुक्स हैं, हमारे क्लोथ्स हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर हमारा होम है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर थिंग्स, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी चीजों का खुद ध्यान रखें। थिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स लाइक पार्क, रोड, बसेस, ट्रेन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर देयर टू बेनिफिट अस ऑल, तो जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं जैसे पार्क्स हैं, रोड्स हैं, बसेस, ट्रेन, स्कूल्स, दे ऑल आर पब्लिक प्रॉपर्टी, इनको हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। दे बिलोंग टू एवरीवन, इस पे हर किसी का अपना हक होता है। मोन्यूमेंट्स आर एन एविडेंस ऑफ अवर पास्ट, एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत, वी कैन से प्रूफ। तो जो मोन्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास्ट का क्या है? एविडेंस है। इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दीज मोन्यूमेंट्स, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व, बचा के रखें। वी नीड टू इंश्योर दैट नो हार्म इज कॉज टू देम, वी शुड मेंटेन देम एंड नॉट डिस्ट्रॉय देम, तो ये हमारी ड्यूटी है, विच शुड मेंटेन देम and not destroy the monuments which are very important for our history. Air, water, light and other gifts of nature are available to all of us. We should use them wisely and not waste or pollute them. तो ये हमारे गॉड गिफ्टेड है, एयर है, वाटर है, लाइट है, तो हमें सब मिलते हैं, हमारे नेचर में अवेलेबल है। सो वी शुड यूज देम वाइजली एंड केयरफुली एंड नॉट वेस्ट और पोल्यूट देम, हमें इनका वेस्ट नहीं करना चाहिए और इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इट इज एवरी सिटीजन्स राइट्स टू एंजॉय दीज फैसिलिटीज, बट एट द सेम टाइम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वी शुड बी सिविक माइंडेड, तो ये हम सबके सिटीजन्स के पास राइट होता है कि इन फैसिलिटीज को हम एंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम उसी टाइम हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना चाहिए। वी शुड बी अ सिविक माइंडेड, हमें एक सिविक माइंडेड सिटीजन बनना चाहिए। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट्स बॉडीज विच हेल्प इन मेंटेनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउएवर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस द सिटीजन्स, तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो मेंटेन करके रखती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्शंस। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स चूज देयर लीडर्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द लीडर्स इज कॉल्ड इलेक्शन। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी कंट्री मीन्स द सिटीजन्स, जो इस कंट्री के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, दे हैव अ राइट टू चूज देयर लीडर्स, तो उनके पास फ्रीडम है, राइट्स हैं कि वो अपना जो लीडर्स हैं वो चुन सकते हैं और एक गवर्नमेंट बना सकते हैं जो कंट्री को चलाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शंस। In India, elections take place for the entire country as well as for every state. तो जो इंडिया में इलेक्शंस हैं वो हर पूरी कंट्री में भी होती हैं और हर एक स्टेट में भी होती हैं। All Indian citizens who are 18 years old or above cast their vote to choose the leaders. This process is known as voting. People who cast their vote are called voters. तो जो 18 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, 18 साल या 18 साल से बड़े हैं, वो अपनी वोट
डाल सकते हैं और अच्छा लीडर चूज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम वोटिंग बोलते हैं, और जो लोग वोट डालते हैं उनको हम वोटर्स बोलते हैं। इलेक्शंस नीड टू बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। तो इलेक्शंस जो है, क्या जरूरत होती है कि जब इलेक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज्ड किया जाए। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लान्स एंड कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। इट डिसाइड्स द डेट्स एंड वेन्यू, होल्ड द इलेक्शंस, कैलकुलेट्स द रिजल्ट एंड अनाउंस देम। तो जो इलेक्शन कमीशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, प्लान्स करती है, इलेक्शंस को कंडक्ट करती है पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में, और ये डिसाइड करती है कि कौन सी डेट को इलेक्शंस होंगे, वेन्यू मीन्स कौन सी प्लेस पे होंगे, होल्ड द एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, फिर रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं और अनाउंस करते हैं पब्लिकली। The Election Commission issues every voter an identity card that has details like the name, address, date of birth and photograph of the voter. तो जो इलेक्शन कमीशन है वो हर एक वोटर को जो 18 साल से ऊपर है एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं, जिसपे उनकी डिटेल्स होती हैं, नेम होता है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ होता है, फोटोग्राफ होती है वोटर की। Each voter carries their identity card to the place allotted to them for casting their vote. तो हर एक जो वोटर है उसको अपना आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ता है जहाँ पे उसने वोट्स डालनी होती हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ पोलिंग बूथ। तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ बोलते हैं। दीज डेज वोटिंग इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो आजकल जो वोटिंग है वो किस चीज से डन हो रही है, ईवीएम से। ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वेयर द वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट बाय प्रेसिंग जस्ट अ बटन। तो जो वोट है वो जस्ट एक बटन जो है उसको प्रेस करके डालनी होती है। वोटिंग इज डन बाय अ सीक्रेट बैलेट। तो वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के कारण ही डन होती है, पूरी हो जाती है। बैलेट का मीन्स है अ सिस्टम ऑफ सीक्रेट वोटिंग। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स दैट द इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ फेयर एंड एन इम्पार्शियल मैनर। तो ये इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि जो इलेक्शंस है वो अच्छे तरीके से हुई हैं और इसमें पार्शलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई। डूज एंड डोंट्स। तो हेयर दे मेंशन डू एंड डोंट्स, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डोंट। First one is citizens who are 18 years and above must exercise their right to vote and should not let it go waste. They should vote only once in the election. तो जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको अपनी वोट का जो राइट मिला है वो डालनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज voters vote and carefully choose a candidate who they think will work towards the betterment of the people. In case a candidate is unable to work properly, he or she may not be elected the next time. तो जो वोटर्स हैं उनको जो वोट है वो केयरफुली डालनी चाहिए, सोच समझकर डालनी चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट है जो लोगों की हेल्प करेगा, जो लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचेगा। अगर आप अनेबल हैं वोट डालने में कि प्रॉपरली जो वर्क है, लीडर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं डालेंगे। द थर्ड वन इज वी शुड इंश्योर दैट दिस इलेक्शंस आर फेयर एंड इम्पार्शियल। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो इलेक्शंस है वो फेयरली हुई हैं, उनमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं हुई। डोंट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए। Voters should not get influenced by anyone and cast their vote to that person. Influence means प्रभावित। तो वोटर्स को प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी से और अपनी वोट किसी भी पर्सन को नहीं देनी चाहिए। Second one is voters should not share the name of the person they voted for as it is a secret ballot. तो वोटर्स को कभी भी उसका नाम शेयर नहीं करना चाहिए जिसको उसने वोट डाली है। So chapter number 4 is finished. Now we will discuss book exercise of this chapter. As we all know that we did it in written assignment number 4. The first one is refrigerator. Fill in the blanks. Refrigerator and televisions at home are dash property. Here we can see on page number 20. The things at home like books, clothes, television, refrigerator, televisions belong to you and your family. They are your private property. Here we can write the answer private. People who live close to our home are our dash
Here we can find the answer on page number 20. We should be polite them. We should be name them these duties. Weak-minded. We find the answer. People who live close by are called our neighbors. So we can write the answer. Neighbors. The third one is citizens who are dash years and above can vote in India. Here we can find the answer on page number 21. Citizens who are 18 years old or above cast their vote to choose the leaders. Answer is 18. Fourth one is, as citizens of India, we enjoy certain dash rights. Fifth one, the dash conduct elections in India. Again, on page number 21, the Election Commission is an organization that plans and conduct elections in India. The answer is Election Commission. The next question is, state true or false. First one is, you should always share the name of the person you voted for. Is it false or true? It is false, because here voters should not share the name of a person they voted for, as it is a secret ballot. Next one is, voters ID card is issued by the government to Indian citizens. Is it false or true? It is false, because here the Election Commission issues every voter an ID card, identity card that has details of that person. And the third one is, India is world's largest democracy. Is it false or true? It is true. Here we can find the answer on page number 21. India is the world's largest democracy. And next one is, voting is done by secret ballot. It is false or true? It is true. Here we can find the answer again on page number 21. Voting is done by secret ballot. Next one is, the gifts of nature should be used wisely and not be destroyed. Is it false or true? It is true, because here we can find the answer. Air, water, light and other gifts of nature are available to all of us. We should use them wisely and not waste or pollute them. The next one is, suggest if the following is a right or a duty. फर्स्ट वन इज, गेटिंग क्लीन वाटर फ्रॉम टैप्स. टैप से साफ पानी मिले हमें. इट इज अवर राइट. सेकेंड वन इज, स्टैंडिंग इन अटेंशन ड्यूरिंग द नेशनल एंथम. इट इज अवर ड्यूटी. नॉट डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी. इट इज अवर ड्यूटी. गोइंग टू स्कूल. इट इज अवर राइट. एंड द लास्ट वन इज, प्रैक्टिसिंग द रिलीजन ऑफ अवर चॉइस. इट इज अवर राइट. So, chapter number 4 is completed by us. I hope so. Students will understand chapter number 4 easily. Thank you. Have a nice day.